नमस्कार बच्चों. So today we'll start with some questions of functions. The first question is consider f r plus 2 4 to infinity given by fx is equal to x square plus 4. Show that f is a bijection. तो अगर हमें शो करना है that f is a bijection, then we need to prove that f is an injection as well as a surjection. So it is given that f is a function from r plus 2 closed interval 4 to infinity where fx is equal to x square plus 4. To prove that function is an injection, what we will do is we will take two elements x1 and x2 from our domain, then we will put f of x1 is equal to f of x2, and if the result is x1 equal to x2, then it is proved that it is an injection. So students, we have taken two elements x1 and x2 that belongs to our domain, that is r plus. Therefore f of x1 is equal to x1 square plus 4 and f of x2 is equal to x2 square plus 4. We will put f of x1 is equal to f of x2. On solving this, that is x1 square plus 4 is equal to x2 square plus 4. We'll cancel out 4 with 4. It gives us x1 square is equal to x2 square. It implies x1 is equal to x2. देखिए x1 square is equal to x2 square है तो x1 is equal to plus minus x2 होना चाहिए, बट यहाँ पे x1 x2 किसको बिलोंग करते हैं बच्चों? पॉजिटिव रियल नंबर्स को. इसलिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन एलिमिनेट हो जाएगा. सो x1 is equal to x2. It implies f is an injection. Now to show that f is a surjection, what we need to prove is that range of f must be equal to codomain. Over here the codomain is closed interval 4 to infinity. तो अगर हम ये बता दें कि इस फंक्शन की रेंज भी 4 to infinity है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये surjection है. So what we will do is we will take any element y, an arbitrary element y from its codomain. So we'll take y belongs to closed interval 4 to infinity. We will put y is equal to f of x. It implies y is equal to x square plus 4. Now we will solve this to get x in terms of y. इसका मतलब x square की वैल्यू हो जाएगी y minus 4 and x is equal to under root of y minus 4. क्लियर? क्योंकि x पॉजिटिव रियल नंबर में, इसलिए हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे. नाउ फॉर ऑल क्लियर है, इट इज क्लियर. देखिए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है. अंडर रूट के अंदर 0 आ सकता है और 0 से बड़ी वैल्यूज आ सकती है. तो क्लियरली y minus 4 must be greater than equal to 0. 4 को यहां पे शिफ्ट करो राइट हैंड साइड में. इट इंप्लाइज दैट y is always greater than equal to 4, और we can say that y belongs to closed interval 4 to infinity. तो clearly for all y that belongs to closed interval 4 to infinity, x always belongs to r plus, रियल पॉजिटिव नंबर, इमेजिनरी नहीं आ सकता इसमें, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को y लेना भी यही है. और we can say that the range of f, देखिए यहां पे इस फंक्शन की डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल 4 टू इंफिनिटी. जो इस फंक्शन की डोमेन होगी वो इस फंक्शन के लिए क्या बनेगी? f के लिए रेंज बनेगी. तो क्लियरली रेंज ऑफ f इज क्लोज्ड इंटरवल 4 टू इंफिनिटी. सिंस रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, इसका मतलब क्या हुआ? f इज अ सर्जेक्शन, हेंस f इज अ बाइजेक्शन. तो हम लोगों ने प्रूव किया कि फंक्शन इंजेक्टिव है और साथ में हमने प्रूव किया कि फंक्शन जो है सर्जेक्टिव भी है. इसका मतलब फंक्शन क्या बना बच्चों? बाइजेक्टिव है. स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से. Show that the function f defined from r to r, that is real numbers to real numbers, defined by fx is equal to x upon x square plus 1 is neither 1 1 nor on 2. मतलब ये फंक्शन ना ही 1 1 है ना ही on 2 है. अगर ये फंक्शन ना ही 1 1 है ना ही on 2 है तो हम दो चीजें कर सकते हैं. पहला केस 1 1 ना दिखाने के लिए what we will do is हमें बता देंगे कि x1 x2 इसकी डोमेन को बिलोंग करते हैं, और on solving f of x1 equal to f of x2 we will show that x1 is not equal to x2, ठीक है. और या फिर हम लोग ऐसे दो नंबर्स ले लें, कोई भी दो रियल नंबर्स जिनके लिए उनकी इमेजेस सेम आ जाए, ठीक है. And to show that the function is not onto, what we will do is we will show that the range of f is not equal to codomain of f. तो देखिए सबसे पहले we will start with 1 1. Let x1 x2 belongs to r. यहां पे क्योंकि दोनों r लिखे हुए हैं तो you have to specify that this r is the domain r. Clear है? domain. Now f of x1 is x1 upon x1 square plus 1 and f of x2 is x2 upon x2 square plus 1. We'll put f of x1 is equal to f of x2. So x1 upon x1 square plus 1 is equal to x2 upon x2 square plus 1. We'll cross multiply this. So x1 into x2 square plus x1 is equal to x1 square into x2 plus x2. हम इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं. This is x1 x2 square minus x1 square x2. This is plus x1 and this is minus x2 equals to 0.
विल टेक x1 x2 कॉमन, तो यहां पे बचेगा x2 माइनस x1, यहां से -1 कॉमन लेते हैं तो यहां पे बचेगा x2 माइनस x1। नाउ विल टेक x2 माइनस x1 कॉमन, तो यहां पे बचेगा x1 x2 -1 और ये x2 माइनस x1 कॉमन आ गया। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। इट इंप्लाइज दैट x1 x2 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू x1 और x1 इक्वल टू x2। ये तो क्लियर है, बट यहां से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, दैट x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2। तो क्लियर है कि सर हमें यहाँ पे एक रिलेशन ये भी मिला कि x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2। इसका मतलब अगर आप x1 की वैल्यू 2 लेते हैं, अगर आप x1 की वैल्यू 2 लेते हैं तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, हाफ। तो आप अगर आप f ऑफ 2 निकालेंगे और f ऑफ हाफ निकालेंगे, यू विल गेट द सेम इमेज। अगर आप f ऑफ 2 निकालेंगे और f ऑफ हाफ निकालेंगे, आप f ऑफ 2 डालिए, अगर आप f ऑफ 2 डालते हैं तो आपको देखिए क्या मिलता है, f ऑफ 2 पे आपको मिलेगा 2 अपॉन 4 प्लस 1, 2 अपॉन 5, और अगर आप f ऑफ हाफ निकालते हैं तो हाफ अपॉन 1 बाय 4 प्लस 1। आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको फिर से क्या मिलेगा, देखिए हाफ अपॉन 5 अपॉन 4 और आप सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन 5। इसका मतलब इमेज ऑफ 2 एंड इमेज ऑफ हाफ इज सेम। इसका मतलब ये मैनी टू 1 हो गया, और यहां से भी आपने शो कर दिया दैट x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। सेकंड केस, नाउ we will assume any arbitrary element y that belongs to codomain। codomain यहां पे r है, तो हमने लिखा है let y belongs to r, क्योंकि दोनों r थे, domain and codomain, so we have to specify that this r is codomain, this y belongs to codomain वाला r। now we will put y is equal to fx, that is y is equal to x upon x square plus 1। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें y को, जैसे अभी हमारे पास y in terms of x है, we have to solve this to get x in terms of y। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, we'll get x square y plus y is equal to x यहां पे लाओ। now this is a quadratic equation in this is a quadratic equation in x। देखिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x के अंदर, तो आप x की वैल्यूज निकालते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे a की वैल्यू है y, b इज -1 एंड c इज y, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज -1 स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4y स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखिए हमें अगर इस फंक्शन की रेंज निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, क्लियरली अंडर रूट में 0 नहीं आना चाहिए और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट इज y cannot be equal to 0, clear, and this 1 minus 4y square must be greater than equal to 0। it implies 4y square is less than equal to 1, it implies y square is less than equal to 1 by 4, which in turn gives us that y belongs to minus half to half। therefore range of f is closed interval minus half to half except 0। देखिए 0 नहीं आ सकता, but range of f, codomain of f was all real numbers। इसका मतलब रेंज ऑफ f is not equal to codomain of f। अगर रेंज ऑफ f codomain of f के बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, onto नहीं है, therefore f is not onto। तो हम लोगों ने ये शो किया that function is neither 1 1 nor onto। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इसी में। लेट f be a function defined from set of natural numbers to natural numbers, and it is given by that f of x is equal to x1 plus x plus 1 upon 2 if x is odd and x upon 2 if x is even। For all x that belongs to set of natural numbers, find whether the function f is bijective or not। देखिए फंक्शन को बाइजेक्टिव बताना है नहीं बताना, हमारा अगर ये फंक्शन 1 1 on 2 होगा देन दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, अदरवाइज ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। अभी आप देखिए, अगर इसी का हम एक एरो डायग्राम बनाएं और अगर ध्यान से देखिएगा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये भी एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 चलता जाएगा, इधर 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं दैट इज ऑड, विल गेट 1 प्लस 1 2 2 अपॉन 2 1, तो द इमेज ऑफ 1 इज 1। अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 अपॉन 2 इज 1, तो आपको फिर से क्या मिलेगा 1। आप 3 लेंगे तो आपको मिलेगा 2, आप 4 लेंगे तो आपको फिर मिलेगा 2।
आप 5 लेंगे तो विल गेट 3, आप 6 लेंगे विल गेट 3, 7 लेंगे विल गेट 4, 8 लेंगे तो 4. So is it clear from the arrow diagram that this function is not 1 1 but this function is onto, क्योंकि हर नेचुरल नंबर के लिए एक प्री इमेज होगी, हर नेचुरल नंबर के लिए एक प्री इमेज होगी. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आप इसे ऐसे ही करते, बट अगर ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव आ जाए, आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा. मैं आपको बताता हूं. देखिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये वाला नेचुरल नंबर, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर्स है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में दैट इट बिलोंग्स टू कोड, दैट इट बिलोंग्स टू डोमेन. सो x1 x2 बिलोंग्स टू n. केस 1 we'll take 3 cases, case 1, case 2 and case 3. Case 1 when both x1 x2 are odd, case 2 when both x1 and x2 are even, and case 3 when x1 is odd and x2 is even, or we can say that x1 is even or x2 is odd. मतलब उनको डिफरेंट लेंगे. तो जब हम लोगों ने दोनों x1 x2 को odd लिया है, odd, तो we will put f of x1 equal to f of x2. odd के लिए आ जाएगा x1 plus 1 upon 2 is equal to x2 plus 1 upon 2. we'll cancel out 2 with 2, so x1 plus 1 is equal to x2 plus 1. we'll cancel out 1 with 1. it implies x1 equal to x2. it means अगर दोनों के दोनों हमारे odd numbers होंगे तो हमारा ये फंक्शन 1 1 है. इवन के लिए हम लेते हैं f of x1 को f of x2 के इक्वल पुट करेंगे, तो इवन है तो इसका मतलब x1 upon 2 must be equal to x2 upon 2. cancel out 2 with 2, we'll get x1 equal to x2. इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर जो डोमेन के अंदर ऑड नंबर्स अगर होते, सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स या सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स होते, तो हमें क्या मिलता है फंक्शन 1 1 मिलता. लेकिन अब थर्ड केस लेंगे जिसमें एक एलिमेंट तो हमारा हमने ऑड लिया है एंड द सेकंड एलिमेंट इज टेकन एज इवन. तो देखिए x1 is odd and x2 is even. now we'll put f of x1 is equal to f of x2. x1 अगर odd है तो f of x1 हो जाएगा x1 plus 1 upon 2, and x2 अगर even है तो f of x2 हो जाएगा x2 upon 2. we'll cancel out 2 with 2, so x1 plus 1 is equal to x2. यहां से x1 की वैल्यू क्या मिली, x2 minus 1. तो क्या यहां से x1 is equal to x2 मिला? नो सर. और बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप x2 जो कि इवन है, अगर आप x2 की वैल्यू 2 लेंगे तो x1 की वैल्यू 1 मिलेगी, मतलब 2 और 1 दोनों के लिए सेम इमेज मिलेगी. इसका मतलब यहां से केस 3 में से हमें नहीं मिला x1 is equal to x2. इट मींस द फंक्शन इज नॉट 1 1. आप इस क्वेश्चन को यहीं पे भी छोड़ सकते हैं कि क्योंकि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट अ बाइजेक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चेक वेदर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट. तो इट इज वेरी क्लियर, वेरी मच क्लियर फ्रॉम दिस पार्ट दैट सिंस द फंक्शन इज नॉट 1 1 हेंस दिस फंक्शन इज नॉट अ बाइजेक्शन. बट मैंने आपको यहाँ पे ये भी प्रूव करके बताया कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है. देखिए, ऑन टू के लिए हम तो क्या करेंगे, वी विल टेक एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट y फ्रॉम दिस कोडोमेन. So let y belong to set of natural numbers and these natural numbers are codomain. Now we'll put y is equal to fx. Now again there will be two cases. Case 1 when x is odd. देखिए function f of x changes accordingly x changes. देखिए f of x ये वाला पार्ट है if x is odd, f of x is x by 2 if x is even. तो यहाँ पे हम लोग दो केसेस लेंगे जब x odd लिया, एक केस जब x is even. जब x odd लिया तो f of x की वैल्यू आ गई x plus 1 upon 2. जब x even लिया तो f of x की वैल्यू आ गई x upon 2. यहां से we'll change it to find x in terms of y. तो यहां से x की वैल्यू आएगी 2y minus 1 और यहां से x की वैल्यू आएगी 2y. Now it is very much clear from this part that 2y minus 1 or 2y plus 1. If y is an integer or if y is a natural number, then it is always an odd number. ठीक है, तो आप देखिए क्लियरली फॉर ऑल y that belongs to set of natural number, that belongs to set of natural number, आप पुट करके देखिए y की वैल्यू 1 you will get x की वैल्यू as 1, y की वैल्यू 2 you will get x as 3. it implies x is an odd natural number. ठीक है, जो कि होना भी चाहिए. यहां से x is equal to 2y. clearly for all y that belongs to set of natural numbers, 2y is always an even natural number. so x belongs to an even natural number. इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज है. इसका मतलब रेंज ऑफ f इज नेचुरल नंबर्स. सिंस रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, सो f इज एन ऑनटू फंक्शन. सिंस f इज नॉट 1 1 बट f इज ऑनटू, इट इंप्लाइज f इज नॉट अ बाइजेक्शन. इज इट क्लियर? आप इसे यहां पे भी ड्रॉप कर सकते हैं दैट f इज नॉट अ बाइजेक्शन. बट अगर क्वेश्चन ऐसा ही चेंज हो जाए कि दैट चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 और ऑनटू, तो उस केस में आपको ऑनटू वाला ऑप्शन भी लिखना पड़ेगा.
I hope this is clear, students.